We have to start angle of contact and shape of meniscus. So capillarity और ये सब सारी चीजें हम लोग आज करेंगे. So angle of contact and shape of meniscus. So shape of liquid surface. If we fill water in a glass tube, the surface becomes concave in shape. So if water is filled in silver tube, the surface becomes horizontal. And if mercury is filled in glass tube, the surface becomes convex. तो जब वाटर को हम लोग ग्लास ट्यूब में फिल करते हैं तब कनकेव सरफेस होता है. जब वाटर को सिल्वर ट्यूब में फिल करते हैं तो हॉरिजॉन्टल ये हो जाता है, सरफेस बिकम्स हॉरिजॉन्टल. और जब मरकरी को ग्लास ट्यूब में डालते हैं तो कन्वेक्स शेप हो जाता है इसका. सो शेप ऑफ लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड मेनिस्कस. तो ये जो शेप है हॉरिजॉन्टल है या कनकेव है या कन्वेक्स है, इसको मेनिस्कस कहेंगे. At point of contact, angle between the tangent to the liquid surface and the solid surface submerged in liquid is called angle of contact. तो यहाँ पे जैसे ये concave surface है, ये जो tangent है इस point of contact पे, और जो ये glass surface है, ठीक है. So angle between the tangent to the liquid surface and solid surface यहाँ पे glass surface है जो, तो इनके बीच में ये जो एंगल है इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच में, ये एंगल थीटा है, 90 डिग्री है. और यहाँ पे जो लिक्विड सरफेस है और ये जो सॉलिड सरफेस है, इनके बीच में जो एंगल है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया. अब यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जब कनकेव सरफेस बन रहा है तो थीटा एक्यूट है. जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बन रहा है थीटा 90 डिग्री है. और जब ये कन्वेक्स सरफेस बन रहा है तो थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है. सो एंगल ऑफ कांटेक्ट इन फिगर 1, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट. सेकंड वाले में एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री और थर्ड वाले में एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस. Angle of contact can be observed when a liquid drop is put on a plate as given below. तो ये तो हम लोग अभी जो लिक्विड एक ग्लास ट्यूब में भरा हुआ है तब क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो देखा हमने. अगर यही ड्रॉप ऑफ लिक्विड है जो कि एक ग्लास प्लेट पे है, उसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये सॉलिड सरफेस है और ये इसका टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. वहां पे ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट, and this is the angle of contact. So water drop on the glass plate theta is less than 90 degree, water drop on silver plate theta is equal to 90 degree, and mercury drop on glass plate theta is greater than 90 degree. Obtuse angle hota hai. So shape of the liquid surface depends on cohesive and adhesive forces. Cohesive forces क्या होता है? The force of attraction between the molecules of the same substance is called cohesive surface. So molecules of the same substance जब आपस में है ना फोर्स लगाता है ना, उसको इंट्रामोलिकुलर बोलेंगे. उसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, दैट इज नोन एज cohesive force. The cohesive force is effective if distance between molecules is less than 10 to the power minus 9 meter. If distance between molecules is greater than 10 to the power minus 9 meter, then cohesive force is negligible. And the sphere drawn around a particular molecule as center and range of cohesive forces as radius is called sphere of influence, जो हम लोग पीछे भी कर रहे थे पिछले क्लास में. Now sphere of molecular activity भी इसको कहते हैं. The center of molecule is attracted by only the molecules lying inside the sphere of influence. Example, cohesive force between water molecules. On the corner molecule, all the neighboring water molecules will apply cohesive force. So net cohesive force on it can be assumed to be centered at 45 degree angle with vertical. Now for other example of cohesive forces, two drops of liquid coalesce into one when brought in mutual contact because of the cohesive force. It is difficult to separate two sticky plates of glass wetted with water because a large force has to be applied against the cohesive force
between the molecules of water, and it is very difficult to break a drop of mercury into small droplet because of large cohesive force between mercury molecules. Now adhesive force दो अलग अलग substance के molecules के बीच में जो force of attraction है उसको adhesive force कहते हैं. The force of attraction between different substances is called adhesive force. ठीक है. So force of attraction between different substances is called adhesive force. Example of adhesive force. So adhesive force is between water and glass tube. So on the corner molecule, adhesive force will be towards the glass wall as shown in the figure 1. Now, other example of adhesive force is adhesive force enables us to write on the blackboard with a chalk. Adhesive force helps us to write on the paper with ink. Large force of adhesion between cement and bricks help us in construction work. Due to force of adhesive, water wets the glass plate. And Fevicol and gum are used in gluing two surfaces together because of the adhesive force. Now, if water is filled in a glass tube, then adhesive force. तो देखो ये कोहेसिव फोर्स इधर होगा, कोहेसिव फोर्स एक इधर होगा, कोहेसिव फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ होगा. ठीक है. सो बेसिकली ये कोहेसिव फोर्स जो लग रहा है रिजल्टेंट, उसका दो कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. ये जो एडहेसिव फोर्स है ये वाटर के मॉलिक्यूल और ग्लास के बीच में जो एडहेसिव फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. So when F adhesive is greater than Fc by root 2, then the resultant force will be as shown in the figure 1b. ठीक है. तो resultant force इस डायरेक्शन में होगा, Fc by root 2 और F adhesive minus Fc by root 2. ये resultant force इधर हो गया है ना. इसको जो लेफ्ट वाला फोर्स माइनस राइट वाला फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स, और नीचे वाला फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है. सो द सरफेस विल बी कनकेव. तो अगर F adhesive is greater than F cohesive divided by root 2, then in that case surface will be concave. And second case, if water is filled in silver tube, ये water glass tube में हम लोग डालें तब ऐसा हो रहा है. Water is filled in the silver tube, तो वहां पे F adhesive is equal to Fc by root 2. So resultant will be vertically downward. So liquid surface will be horizontal. Now, third case, if Hg is filled in the glass tube, F adhesive is less than Fc by root 2. तो रिजल्टेंट जो Fc by root 2 माइनस F adhesive इधर लगेगा, Fc by root 2 माइनस F adhesive. सो ये फोर्स इस तरफ लगेगा और Fc by root 2 इधर है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे अंदर की तरफ लगेगा, और इसके वजह से जो इसका शेप है, राइट, इसका शेप कन्वेक्स शेप हो जाएगा. Now angle of contact is different for different pairs of solids and liquids. So the angle of contact is different for different pairs of solids and liquids. For mercury and glass, the angle of contact is 135 degree. For ordinary water and glass, the angle of contact is nearly 4 degree. Okay. The angle of contact increases on increasing the temperature. Angle of contact decreases on adding soluble impurity in the liquid. Angle of contact does not depend upon the inclination of the tube. And waterproofing agent increases the angle of contact from the acute angle to an obtuse angle. तो बेसिकली तुमको ये सारी चीजें अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि याद करनी चाहिए, बिकॉज नीट में कभी कभी क्या है कि ये सब बेसिक क्वेश्चंस भी दे देते हैं और उसमें 4 ऑप्शंस में ये सब रहेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है वो देखने के लिए, राइट. अब सॉलिड लिक्विड पेयर है ना. तो यहाँ पे देखोगे कि ग्लास और नॉर्मल वाटर के बीच में है ना
यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 8 डिग्री है, ग्लास और डिस्टिल्ड वाटर के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री है, और ग्लास और अल्कोहल के केस में 0 डिग्री, ग्लास मरकरी में 135 डिग्री, पैराफिन वैक्स में 108 डिग्री और सिल्वर वाटर में 90 डिग्री, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ concave meniscus, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री अगर होगा तो कनकेव मेनिस्कस है, या फिर एडेसिव फोर्स जो है FC/√2 के बराबर है तो कनकेव होगा। प्लेन मेनिस्कस में थीटा इज लेस देन, लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, यहाँ पे theta is equal to 90 degree, FA is equal to FC/√2, liquid does not wet the solid surface. और convex meniscus में theta greater than 90 degree और FA is less than FC/√2, so liquid does not wet the water surface, solid surface, sorry. Now, relation between angle of contact theta, capillary radius r and radius of meniscus r. तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस कैपिटल आर है, कैपिलरी का जो रेडियस है स्मॉल आर है, और थीटा जो है ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, राइट। तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी 90 है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा है, ये भी एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो अब देखो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, सो कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर। सो ये जो मेनिस्कस का जो रेडियस है, कर्वेचर रेडियस ऑफ मेनिस्कस कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? यस सर। Now excess pressure excess inside a liquid drop, the tendency of free surface due to surface tension to acquire minimum surface area makes it curved, as shown in the figure below. Free surface of drop act as a stressed membrane and tries to acquire minimum surface area. As for a given volume, sphere has minimum surface area, drops become spherical. Now, due to tendency of free surface to acquire minimum area, it compresses the drop, in response to which pressure inside the drop increases as compared to its surrounding. Right? This excess of pressure depends on the coefficient of surface tension sigma and radius of curvature r. So as the pressure of water inside will be greater than the outside atmospheric pressure, this extra pressure is called pressure excess. To find pressure excess, make free body diagram of the half part. The forces on this hemisphere are given as P interior, that is pressure inside, and PO is the pressure outside. So pushing force on the left half liquid due to right half liquid will be P इंटीरियर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये देखो, ये जो लेफ्ट हाफ लिक्विड पे राइट हाफ लिक्विड के वजह से जो प्रेशर है पी इनसाइड इंटू ये जो एरिया होगा सरफेस, ये जो कर्व, ये जो सरफेस है, तो इस सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है। तो पी इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर विल गिव यू द फोर्स, पुशिंग फोर्स। पुशिंग फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी P0 इंटू पाई आर स्क्वायर। इधर से जो फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, तो प्रेशर P0 इंटू पाई आर स्क्वायर ये फोर्स लग रहा है। और सरफेस टेंशन फोर्स ऑन द लेफ्ट हाफ सरफेस ड्यू टू राइट हाफ सरफेस, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा T इंटू, ठीक है,
T इंटू 2πr हो जाएगा सरफेस टेंशन। तो T सरफेस टेंशन है इंटू 2πr जो इसका पूरा सरकमफेरेंस होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द so T into 2πr this will give us the surface tension force on left half surface due to right half surface, right? अब ये टोटल हम लोग यहाँ पे अगर लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये जो सरफेस टेंशन के वजह से जो फोर्स है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से जो फोर्स है वो इनसाइड प्रेशर की वजह से जो फोर्स है उसको बैलेंस करेगा। So balancing the forces we have P inside into pi r square is equal to P outside into pi r square मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस T into 2 pi r। So अब हम लोग पाई आर स्क्वायर से इसको पूरे को डिवाइड कर देते हैं तो हमें P इनसाइड इज इक्वल टू P आउटसाइड प्लस 2T बाई आर हो गया। तो 2T बाई आर जो है दिस इज द एक्सेस प्रेशर P inside minus P outside is equal to 2T by R is called the pressure excess. So pressure inside the drop will be greater than pressure outside by 2T by R. So generally we can say that pressure at concave part will be greater, है ना। जो concave part मतलब ये अंदर वाला जो part है, so pressure at concave part will be greater than pressure at convex part by 2T by R, where R is the radius of curvature. तो ये concave part of surface है, ये convex part। यहाँ पे जो pressure होगा ये यहाँ से जो है 2T by R के से ज्यादा होगा। मान लो ये convex part में P0 है तो concave part में P0 plus 2T by R हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now excess pressure inside a liquid drop, ठीक है। एक ये ऑल्टरनेट मेथड भी है, ये तो हम लोगों ने जो देखा दिस वाज ड्यू टू प्रेस मतलब जो हम लोग प्रेशर इनटू एरिया करके फोर्स निकालते हैं और वैसे करते हैं और उसका एक जैसे पूरे ड्रॉप है उसका एक यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करके और उसके बाद हम लोग मेजर करते हैं। दूसरा तरीका इसको करने का है, कंसिडर a spherical liquid drop of radius r, let sigma be the surface tension of the liquid. Due to spherical shape there is an excess pressure P inside the drop over that on outside. This excess pressure acts normally outward. Now let the radius of the drop increases from r to r plus delta r. तो ये एक्सेस प्रेशर की वजह से ड्रॉप का रेडियस जो है r से r प्लस डेल्टा r बन के बड़ा थोड़ा बड़ा स्फीयर बन गया under the excess pressure P. So initial surface area 4 pi r square है, फाइनल सरफेस एरिया 4 pi r plus delta r dr का होल स्क्वायर हो गया। तो 4 pi r square plus 2r dr plus dr square, 4 pi r square plus 8 pi r dr, dr स्क्वायर को हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं क्योंकि dr अपने आप छोटा है, उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा तो दिस इज एज्यूम टू बी 0। तो ये 4 pi r square plus 8 pi r dr हो गया। ना इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या हो गया, देखो ये जो ये फाइनल सरफेस एरिया है ये इनिशियल सरफेस एरिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 8 पाई आर डी आर जो है दिस इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। वर्क डन इन एनलार्जिंग दैट ड्रॉप इज इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमारा सिग्मा है, 8 पाई आर डी आर जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया है इसको सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वर्क डन हम लोग का निकल जाएगा। सो बट वर्क डन is equal to force into distance, ठीक है। so work done is force into distance, so this is equal to force क्या है, pressure into area है, pressure into area into distance। so pressure P into 4 pi r square into dr हो गया, P into 4 pi r square into dr is 8 pi r dr into sigma, ठीक है। ये हमारा वर्क डन है, इसको इक्वेट कर लेते हैं तो हमारा एक्सेस प्रेशर जो आता है, देखो ये डी आर कैंसिल हो गया, 4 पाई और 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये आर एक कैंसिल हो गया तो 2 सिग्मा बाय आर इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर पी। तो पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर। तो वहां पे जो वो 2t बाय आर कर रहे थे सेम चीज 2 सिग्मा बाय आर आ गया। सरफेस टेंशन यहाँ सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे टी से रिप्रेजेंट किया था।
तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, है ना, वर्क एनर्जी वाले प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, और जो हम लोग फोर्स वाला जो फ्री बॉडी डायग्राम निकाल के किए वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? यस सर। ये हम लोग एक्सेस प्रेशर जो निकाले हैं, ठीक है, दिस इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अब हम लोग एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड बबल कर रहे हैं, है ना। लिक्विड बबल में दो सरफेस जो होगा एयर के कांटेक्ट में, ये दोनों सरफेस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सेस पे, बिकॉज दो सरफेसेस है ना, इसीलिए 4T/R हो गया, वहां 2T/R था, यहाँ 4T/R हो गया। तुमको पूरा प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड बबल इज 4T/R, तुमको वैल्यू याद रखना है ना। यहाँ पे उसी को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस टेंशन को 4σ/R कर रहा है। ये ऑल्टरनेट मेथड से है, ये एल्जेब्रिक मेथड से। सो प्रूफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वाटर ड्रॉप है तो excess pressure inside a liquid drop is 2T/R, and excess pressure inside a liquid bubble that is kept in air is 4T/R. अब देखिए प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में जो डेल्टा पी होगा वो 0 हो जाएगा, है ना, एक्सेस प्रेशर किधर भी नहीं है। यहाँ पे जो देखो ये कनकेव वाला पार्ट है, डेल्टा पी यहाँ पे दिया हुआ है ना, जो इधर प्रेशर ज्यादा होगा कनकेव पार्ट में, है ना, तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा, दैट इज इक्वल टू 2T/R हो गया, राइट। नाउ डेल्टा पी बबल इन एयर, अच्छा कन्वेक्स सरफेस में इधर प्रेशर ज्यादा होगा, जो कनकेव साइड होता है उधर प्रेशर ज्यादा होता है, डेल्टा पी इज 2T/R, है ना। ड्रॉप, वाटर ड्रॉप में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 2T/R। बबल इन एयर, एयर के अंदर बबल है तो दो सरफेस एरिया हो गया, सो दो सरफेस फ्री सरफेस हो गया, 4T/R हो गया। और यही बबल इन लिक्विड है तो एक ही सरफेस होगा, है ना, अंदर वाला सरफेस, इसीलिए 2T/R ही लिखते हैं यहाँ पे, है ना। जब एयर में है बबल तब 4T/R, और जब वाटर में है बबल तो 2T/R, क्योंकि यहाँ फ्री सरफेस अब बस अंदर वाला सरफेस होगा, बाहर वाला सरफेस तो वाटर के कॉन्टैक्ट में। Now bubble at depth h below the free surface of liquid of density d, तो यहाँ पे डेल्टा पी इज, ये जो 2T/R है प्लस HDG, हम लोग वो उसके वेट को भी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। Now liquid film of unequal radii, सॉरी सिलिंड्रिकल लिक्विड सरफेस है, तो यहाँ पे डेल्टा पी इज T/R हो जाएगा, और लिक्विड सरफेस ऑफ अनइक्वल रेडियाई, मतलब इधर वाले का सरफेस R1 है, इधर वाले का सरफेस R2 है, तो डेल्टा पी इज T1/R1 प्लस 1/R2, और यहाँ डेल्टा पी लिक्विड सरफेस ऑफ अनइक्वल रेडियाई, लिक्विड फिल्म है, सॉरी लिक्विड फिल्म है ऑफ अनइक्वल रेडियाई। तो दो सरफेसेस हो गए अब यहाँ पे, बाहर और अंदर दोनों का। यहाँ पे अंदर पूरा लिक्विड भरा होता तो बस बाहर वाला सरफेस था, इसीलिए T1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे दो सरफेसेस एयर के कॉन्टैक्ट में आ गए, तो 2T 1/R1 प्लस 1/R2। खैर ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस वाला पार्ट, मतलब दिस प्लेन सरफेस, these are not very important, this you don't need to remember. Now in this question, a drop of water and a soap bubble have the same radii. Surface tension of soap solution
is half of that of water. The ratio of excess pressure inside the drop and bubble. तो रेडियस दोनों का सेम है, तो सरफेस टेंशन एक वाटर ड्रॉप का T1 इज इक्वल टू, ठीक है, रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड, तो सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन is half that of water. So T2 is equal to T1 upon 2, और excess pressure डेल्टा P वाटर के केस में डेल्टा P1 लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू वाटर ड्रॉप है, तो वाटर ड्रॉप के केस में 2T/R होगा, 2T1 upon R having the same radii, तो 2T1 upon R हो गया। और जो सोप सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सोप बबल जो होगा वहां पे डेल्टा P2 इज इक्वल टू 4T2/R, ठीक है, और ये T2 क्या है, T1/2 है, तो 4 into T1/2/R, so again this becomes 2T1 upon R, ठीक है, और इनका रेशियो निकालना है, डेल्टा P1/डेल्टा P2 is equal to 2T1 upon R divided by 2T1 upon R, which is equal to 1:1. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सोप बबल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 कंबाइन, तो इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, ये दोनों सोप बबल्स जिनके रेडियस R1 और R2 है, ये दोनों कंबाइन करते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस सेपरेटिंग देम, ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन कर गए। अब इसका जो कॉमन सरफेस है उसका रेडियस हम लोग को निकालना है, कॉमन सरफेस का। सो अब देखो ये बबल 1 है, प्रेशर इनसाइड बबल 1, जो बबल 1 के अंदर जो प्रेशर है P1 इज इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस ऑफ 4T अपॉन, सोप बबल है तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो 4T अपॉन R1 एक्सेस प्रेशर, और प्रेशर इनसाइड बबल 2 is equal to P2 P0 plus 4T upon R2. ना जो कॉमन सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो RC है, लेट RC be the radius of curvature of common surface. So excess pressure inside it is equal to 4T/RC. So this is equal to
यहाँ पे इसका प्रेशर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, सो इसीलिए R2 की तरफ कनकेव है। सो P2 minus P1 is equal to 4T upon RC। P2 हम लोग निकाल सके हैं P0 plus 4T by R2 minus P0 minus 4T by R1 is equal to 4T upon RC। ठीक है, so this is equal to 4T कॉमन ले लो, 1 by R2 minus 1 by R1 is equal to 4T by RC। 1 by RC is equal to 1 by R2 minus 1 by R1। So RC is equal to R1 R2 R1 minus R2। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया? ये सब डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है तो याद रहता है, तो इट इज इजियर फॉर यू, यू विल सेव टाइम। तो रिजल्ट ऑलमोस्ट याद ही रहना चाहिए। Next one is two spherical soap bubbles of radius R1 and R2 in vacuum coalesce under isothermal condition. The resulting bubble has a radius equal to, so दो soap bubble है, इसका radius R1 और R2 है, ये दोनों ज्वाइन करके एक बड़ा ये बनेगा आइसोथर्मल कंडीशन में, और इसका जो रेडियस है वो लेट से R है। ठीक है, ना आइसोथर्मल कंडीशन मतलब कि T इज कांस्टेंट, सो P1 V1 इज इक्वल टू P1 V1 और P2 V2 मिला के इज इक्वल टू P इंटू V हो गया। सो व्हेन टू सोप बबल्स रेडियस R1 एंड R2 इन वैक्यूम कोएलेस इन आइसोथर्मल कंडीशन, उस केस में P1 V1 प्लस ऑफ P2 V2 इसका इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर P इंटू वॉल्यूम V। So excess pressure inside a soap bubble is equal to 4T upon R1। ठीक है, so excess pressure inside a soap bubble is given by 4T by R1, so this is 4T by R1 into volume इसका, तो 4 by 3 pi R1 cube plus of P2 V2, that is 4T by R2 excess pressure inside this into 4 by 3 pi R2 cube is equal to,
यहाँ पे 4T, सेम सोप बबल है, सरफेस टेंशन सब में सेम ही रहेगा, 4T/R एक्सेस प्रेशर इंटू वॉल्यूम 4/3 इंटू R³ अब इसको 4T 4/3 और 4/3 ये सब कैंसिल कर देते हैं जो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे R1³/R1 मतलब R1² प्लस ऑफ R2² इज इक्वल टू R², ठीक है। सो R इज इक्वल टू √R1² प्लस ऑफ R2², ठीक है। सो ये ऑप्शन 4 हो गया इसका आंसर। क्लियर है बच्चों? यस सर। भाई बाकी लोग भी रेस्पॉन्ड किया करो, बस एक सिद्धांत ही बोलता रहता है यस सर, बाकी सबका नो सर मान ले, क्या मान ले? प्लीज रेस्पॉन्ड इन क्लास। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, now two soap bubbles A and B are kept in closed chamber where the air is maintained at a pressure of 8 Newton per meter square, ठीक है। तो दो सोप बबल्स हैं, they are kept in closed chamber where the air is maintained at a pressure of 8 Newton per meter square, मतलब आउटवर्ड आउटसाइड प्रेशर जो है वो 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। Now the radii of bubble A and B are 2 centimeter and 4 centimeter respectively. तो आउटसाइड प्रेशर P0 is equal to 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका ए वाले का रेडियस इज 2 सेंटीमीटर और बी वाले का जो रेडियस है दिस इज 4 सेंटीमीटर। Now surface tension of the soap water used to make bubbles is 0.04, T is equal to 0.04 Newton per meter. Find the ratio NB by Na, where Na and NB are number of moles of air in bubbles A and B respectively. So, excuse me, pressure inside A is equal to P0 plus excess pressure 4T/RA हो गया, so which is equal to 8 plus 4 into 0.04 divided by रेडियस इसका 0.02, तो 4 2 8, 8 plus 8 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर बी वाले का हो जाएगा P0 plus 4T/RB, so P0 8 plus 4 into 0.04 by 0.04, this is 12 Newton per meter square. Now for ideal gas, ठीक है, ये दोनों मिलके so देखो PV PAVA is equal to Na into R into T, ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम ही रहेगा, सो nRT PV is equal to nRT। अब ये देखो Na, so Na number of moles in A is PAVA divided by RT,
ठीक है, और NB PBVB डिवाइडेड बाय RT। हमें रेशियो निकालना है NA बाय NB का, सॉरी NB बाय NA का। सो दिस इज PBVB डिवाइडेड बाय PAVA। तो PBVB pressure of B is 12 into volume of B is 4 by 3 into pi into R cube, 0.04 का क्यूब, 0.04 का क्यूब डिवाइडेड बाय PAVA, pressure of A is 16 into 4 by 3 pi into 0.02 का होल क्यूब। तो 4 by 3 pi कैंसिल हो गया, 4 3s are 12 and 4 4s are 16. So this is 3 by 4 into twice 2 cube, 8. So this is 6 by 1. So ratio is 6:1. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Next one is excess pressure inside a soap bubble is twice the excess pressure inside a second soap bubble. So P in 1, P in 2. So excess pressure inside a soap bubble is twice the excess pressure inside the second soap bubble. The volume of the first bubble is n times the volume of the second. So इसका volume V1 है, इसका volume V2 है. So हमें n का वैल्यू निकालना है. तो देखो P इनसाइड जो एक्सेस प्रेशर 1 का है twice the excess pressure inside the second. Excess pressure inside first is 4T by R1 is equal to 2 into 4T upon R2. 40 cancel हो गया. R2 is equal to twice of R1. Volume V1 by V2 हम लोग को निकालना है, ठीक है, n times the volume of the second. So मतलब देखो V2 by V1, sorry, V1 is equal to n times V2 है, n times the volume of the second. So V1 by V2 is equal to n हम लोग को निकालना है. V1 by V2 मतलब 4 by 3 pi R1 cube divided by 4 by 3 pi R2 cube is equal to n. 4 by 3 pi दोनों में कैंसिल हो गया. R1 by R2 का होल क्यूब is equal to n. तो अब यहाँ पे देखो R1 by R2 is equal to 1 by 2 हो जाएगा. So this is n is equal to 1 by 8, 1 by 2 का होल क्यूब. तो this is 0.125. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
Now capillary action. So when one end of capillary tube of radius r is immersed into a liquid of density d, okay, which wets the sides of the capillary tube, water and capillary tube of glass. Okay. So the shape of the liquid meniscus in the tube becomes concave upwards. Now r is the radius of the curvature of the liquid meniscus. Okay. And T is the surface tension of the liquid, P is the atmospheric pressure. So pressure at point A, that is atmospheric pressure, और pressure at point B is P minus 2T by R, है ना. तो जो कनकेव वाला जो साइड होता है वहां पे एक्सेस प्रेशर 2T by R होता है, तो B में लेस होगा प्रेशर P minus 2T by R. यहाँ पे दोनों तरफ प्रेशर सेम हो जाएगा, राइट. और pressure at points C and D, just above and below the plane surface of liquid in the vessel, is also P. Point B and D, B and D are in the same horizontal plane in the liquid, but the pressure at these points is different. ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे pressure is different. यहाँ पे pressure less है, यहाँ पे pressure ज़्यादा है ना. तो इसके वजह से इसमें क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लिक्विड फ्लो करेगा, और जितना प्रेशर का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 2T by R, उसके बराबर रो जी एच ये हाइट ऊपर तक जाएगा जिससे उसको मेंटेन कर सके. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम द लिक्विड लेवल राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट h. तो रो मतलब HDG, जो रो जी एच हम लोग करना है, so HDG is equal to 2T by R, pressure due to liquid column is equal to pressure difference due to surface tension. तो H जो हो जाएगा, height in the capillary tube is 2T by RDG और 2T cos theta. तो अगर हम लोग ये, तो इसका जो R है, दिस इज बेसिकली ये वाला R जो मेनिस्कस का, हमें तो ये वाला R कैपिलरी ट्यूब का R के टर्म्स में निकालना है. तो अब देखो, कैपिटल R cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r, सो कैपिटल R इज स्मॉल r बाय cos थीटा, है ना. ये स्मॉल r है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज स्मॉल r एंड दिस इज कैपिटल R, तो R cos थीटा इज स्मॉल r. सो अब हम लोग इसको अगर कैपिटल R के जगह स्मॉल r के टर्म्स में लिखेंगे तो 2T cos थीटा बाय RDG आ जाएगा. सो 2T cos थीटा बाय, यहाँ डेंसिटी को फिर इन्होंने रो से लिख दिया, वहां तक D तक लिख रहे थे, तो रो ही लिखना चाहिए था, इट इज बेटर. ठीक है, सो इसीलिए H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन रो RG. थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So capillary rise is given by H is equal to 2T cos theta upon rho RG if theta is less than 90 degree, है ना. तो उस केस में theta less than 90 degree है, मतलब cos theta is positive, H is positive, so water in capillary tube will rise up. Okay, if theta is equal to 0 degree, water in the capillary tube will not rise, है ना. water in silver tube जैसे है. और theta greater than 90 degree है, H negative, so water in capillary tube will go down, mercury in glass tube. ठीक है, so if so H is inversely proportional to R, so if the capillary is thin, तो यहाँ पे देखो H और R inversely proportional है, तो अगर R रेडियस कम होगा कैपिलरी ट्यूब का, मतलब कैपिलरी ट्यूब अगर थिन है तो वाटर विल रेज टू मोर हाइट, है ना. H का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा. सो इफ प्योर वाटर इज इनसाइड अ ग्लास ट्यूब देन थीटा टेंड्स टू 0, तो वहां पे जो cos 0 1 हो जाएगा. सो H इज इक्वल टू 2T by rho gr. Although in the previous derivation the volume of meniscus is negligible, but if we have to consider the volume of meniscus also, then in that case 2T by rho gr cos theta minus r by 3 होता है. बट जनरली इसको हम लोग नेग्लिजिबल ही मानते हैं, ये उतना यूजफुल नहीं है, इसको रहने दो. ठीक है. Now
इतना हाई लेवल पूछते नहीं है बेसिकली. Now, if in a vertical capillary tube of radius tube, liquid rises to a height h, then on tilting the capillary tube by an angle, the vertical height of the liquid will remain the same, but the length of the liquid column depends on angle phi. तो length जो है वो phi पे depend करेगा, but ये height same रहेगा. So basically L cos theta is L cos phi is equal to h हो जाएगा, और h by cos phi, L length of the liquid in capillary tube is equal to h upon cos phi. H is the height from the free surface. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. 89th question है, water rises to a height of 10 centimeter in a capillary tube and mercury falls to a depth of 3.42 centimeter in the same capillary tube. So जब वाटर डालेंगे तो उसका हाइट इतने से इंक्रीज करेगा, मरकरी डालने से उसका हाइट इतना डिक्रीज करेगा. इफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मरकरी एंड वाटर इज 135 and 0 degree respectively, the ratio of surface tension of water and mercury is given as. तो ये H is equal to 2t cos theta upon r rho g, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट. सो जो सरफेस टेंशन T है, दिस इज इक्वल टू एच आर रो जी डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा. तो रेशियो ऑफ सरफेस टेंशंस निकालना है. सो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू H1, सेम कैपिलरी ट्यूब यूज कर रहे हैं तो H1 R रो 1 G by 2 cos theta 1 by H2 R root 2 G by 2 cos theta 2. अब देखो R G कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू H1 रो 1 H2 by root 2 cos theta 2 by cos theta 1. So T1 upon T2 is equal to, अब ये वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं भाई. वाटर के केस में है ना, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड मर्करी निकालना, तो वाटर के केस में H1 10 सेंटीमीटर है और ये जो है 3.42 सेंटीमीटर है. रेशियो है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. इंटू रो 1 बाय रो 2, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1 बाय 13.6 हो गया, इंटू cos थीटा 2 बाय cos थीटा 1 मतलब cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 135 डिग्री. ठीक है. So this is equal to 10 divided by 3.42 into 1 by 13.6 into cos 0 degree 1 cos 135 degree 90 plus 45 नेगेटिव हो जाता है. ठीक है. तो बस हम लोग मैग्नीट्यूड ही लेंगे, तो इसको 1 by root 2 लेने दो. ठीक है. रेशियोज है. सो दिस इज इक्वल टू, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे अगर, तो 10 into root 2 14.14 divided 0.30.
1:6.5 कुछ गलत किया क्या हमने? 10 into √2 14.1 divided. यहाँ पे ना एक तो 3.42 था, वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये नीचे जा रहा था, तो उसी से cos 135 डिग्री जो यहाँ पे आ रहा था, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। 1/√2.707 होता है। इन्होंने 1:6.5 दिया, आंसर तो आ नहीं रहा है 1:6.5। इन लोगों ने तो कैलकुलेशन सही किए हैं। H1 by H2 3.42 cos theta 2 by cos theta 1 cos theta 2। अच्छा, cos theta 2 by cos theta 1 था, हम लोगों ने उल्टा कर दिया। cos 135 by cos 0 डिग्री, मतलब 1/√2 divided by 1. So this is equal to 10 divided by 3.42 into 10 into 0.15. So this is same as 1:6.5. The value is same in this case. इनको कैलकुलेट करोगे ना तो ये आ जाएगा 10 divided by 65.77. So 10 divided by this is 1/6.57. So this is 1:6.5. तो इसको पूरे को कैलकुलेट करने से जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेंगे, तब फिर हम लोग ज्यादा बेटर से आंसर को टिक कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The drops of liquid of density rho are swimming half immersed inside the liquid of density sigma. ठीक है, so half. तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो सिग्मा डेंसिटी और जो ड्रॉप है उसका डेंसिटी रो है। Now if the surface tension of the liquid is T, तो ये जो लिक्विड है इसका जो सरफेस टेंशन है वो T है।
देन द रेडियस आर ऑफ द ड्रॉप, हम लोग को इस ड्रॉप का रेडियस आर निकालना है, ठीक है। सो जो वेट होगा ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो द वेट विल बी बैलेंस्ड बाय, ये जो पोर्शन है, ये जो इसके वजह से जो अपथ्रस्ट है, ठीक है, तो इसके वजह से जो सरफेस टेंशन इंटू टी इंटू 2 पाई आर ऊपर के तरफ जो फोर्स लगेगा, ये इसको बैलेंस करेगा, इसका वेट, और जो ऊपर के तरफ अपथ्रस्ट होगा, बॉइंट फोर्स जिसको हम बोल सकते हैं, ये दोनों मिलके ये इसके वेट को बैलेंस करेगा। सो वेट ऑफ ड्रॉप is equal to upthrust plus of force due to surface tension. Force due to surface tension. So weight of drop, इसका जो ये पूरा जो liquid drop है, इसका जो density है, this is rho. तो rho density into volume, ठीक है, 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube into g is equal to, इसका हाफ ऑफ द लिक्विड, ये इतना हाफ पोर्शन इज इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। तो अनदर लिक्विड, मतलब जिसमें ये इमर्स किए हुए, तो द वॉल्यूम विच इज, सो हाफ ऑफ दिस वॉल्यूम, अब थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड, वॉल्यूम इमर्स्ड कितना है, हाफ ऑफ 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है, हाफ ऑफ दिस वॉल्यूम इज इमर्स्ड। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच दिस ड्रॉप इज इमर्स्ड इनटू वॉल्यूम विच इज डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सरफेस टेंशन टी इनटू जो टोटल जो इसका जो ये यहाँ पे जो ऐसे स्फेरिकल सरफेस बनेगा, टी इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये जो लिक्विड है, राइट, इसका जो सरफेस टेंशन आएगा पूरा, ठीक है, टी इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर इसीलिए क्योंकि इसका जो सरकमफेरेंस है इस पोर्शन का, सर्कुलर पोर्शन का, टी इंटू 2 पाई आर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो we have to calculate रेडियस आर हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो रेडियस आर, कैपिटल आर दिया हुआ, तो कैपिटल आर ही यूज करता है। सो वी हैव टू फाइंड दिस रेडियस कैपिटल आर। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब जी को कॉमन ले लेंगे, रो माइनस सिग्मा बाई 2 इज इक्वल टू टी इंटू 2 बाई कैपिटल आर। सो 2 पाई ये गया तो ये 2 बचा, आर यहाँ पे आर स्क्वायर बचा। सो आर स्क्वायर 2r स्क्वायर जी अपॉन 3 2 रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टी, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3t डिवाइडेड बाय जी इंटू 2 रो माइनस सिग्मा, और r का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस।
So 3T by G into 2 rho minus sigma. So first वाला ऑप्शन है इसका आंसर. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. जो तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चंस हैं कैपिलरिटी वाले, तो कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने कर लिया. एक बार सारे एग्जांपल्स जो बचे हुए हैं उसको एक बार देख लेना. कोई एग्जांपल नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना. और अब तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया तो तुम सारे क्वेश्चंस पीछे से बना सकते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के. ठीक है, तो पहले जो एग्जांपल्स रह गए हैं उसको एक बार देख लेना. देयर आर मेनी एग्जांपल्स विच आर देयर, 8-10 एग्जांपल और हैं, तो उसको देख लेना. ठीक है, और देखने के बाद कुछ नहीं समझ में आया तो वो मेरे से पूछ लेना पहला, और दूसरा फिर उसके बाद पीछे एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज से जो भी डाउट है पूछो मेरे से. ठीक है, इस पूरे हफ्ते में इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है तुमको. इज इट क्लियर? Yes, sir.